स्टार्ट करें. Good morning. So now we are moving to the last module. So far as the first part is concerned, the first is related to the corporate law, the second one is related to the IBC, and the third one is related to the corporate governance. The second one, it includes the social responsibility. It means it deals with the CSR. We already discussed this provision under section 135 of the Companies Act 2013. We also discussed the rules related to the social responsibility, corporate social responsibility, when to constitute the CSR committee. We also discussed the provisions, and the third part is related to the sustainability. This sustainability basically deals with the ESG, that is environmental, social, and governance aspect. ESG. It also deals with the triple bottom line. Bottom line means a profit. Profit are of a three types. It deals with the people, it deals with the planet, and it deals with the one is people, planet, and the people for environmental capital. I'm sorry, planet for the environmental capital. This is accounting capital, and the third P is related to uh, society. है अभी मैं actually भूल गया. I have mentioned over here one P for the planet, people. Let me show you. It's there. I have explained even in the yes, profit, planet, and people. So it deals with the three things. Okay, so this entire module deals with the three things: corporate governance, CSR, and the sustainability. Now moving to the first part, that is related to the corporate governance. The name itself suggests corporate means a company, and the G means governance, means direction is required. The purpose of keeping this chapter at last is now you have thoroughly understood the concept of the Companies Act. So if you understand the Companies Act provision, then ultimately this topic deals with the provisions and how it is to be regulated, how it is to be directed. So it is easy for you to understand the concept of the corporate governance. From section number 1 to section number, I think 229 to 45 yesterday, I know we have completed the in the previous session 245 operation and the mismanagement. In that case, from section number 1 to 245, we discuss almost all the provisions related to the companies, starting from the buyback of shares, from the bonus shares, from the security premium, meeting provisions, board committees, for example corporate governance committee, CSR committee, then after NRC committee, the nomination and the remuneration committee structure, what would be the proportion of the or the combinations of the board composition, percentage of the directors, that is independent directors required in a a board. So basically this sort of things we are going to see in the corporate governance part. So now let us see the corporate governance concept and the issues. According to the Adrian Cadbury committee, committee setup, particularly for the corporate governance, they state that corporate governance is a system by means of which the companies are directed and controlled. This is very important. Directed and controlled. Fine. So two things you have to remember: D and C. It is a system. It is a sets of procedure. It is a framework. You can see this type of words which are used for the corporate governance. आप सिस्टम भी बना सकते हो और प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हो. माने कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, corporate governance models, corporate governance principles, fine, which are required, or the framework which are required for the direction and the controlling of the company. It has to do with the power and the accountability, who exercise in whose behalf and they have also stated that when you are directing the organization, controlling the organization, it's a sets of criteria that strengthen the transparency, honesty, fairness, accountability, and the responsibility in organizational management. Everything is required. Very very important. These are the criteria why corporate governance is required. तो आपको हर बार अलग अलग अलग
क्वेश्चंस तैयार नहीं करने हैं। एक बार हम लोग देखेंगे कि भाई वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड, नीड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एडवांटेज फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेरिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो सब एक ही जगह पे रखेंगे। अभी हम लोग एक चीज देखते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज पे ध्यान देना है। याद रखना है कि भाई ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड responsibility, these are the things which is required. Now NR Narayan Murthy committee, they also define the word corporate governance. If you look at it, is an acceptance by the management of the inalienable rights of the shareholders. Inalienable rights of the shareholders, they focus on the rights of the shareholders. The reason is only they are the real owners. So as they are the true owners of the corporations and their role as a trustee on behalf of the shareholder. So it is all about the commitment to the value, ethical business conduct, again, value, ethics, and making a distinction between the personal and the corporate fund. We have also discussed even in the accounting, separate entity concept. Both are different. Fine. So you have to act, if you are an agent, then you have to act in a good faith. Shareholders are the principals and the board of directors are the agent. So agents should act in a good faith. Barabar. There is a shift from the management to the governance. They are focusing more. There is a paradigm shift in the corporate management from the traditional management concept to the governance. तो जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे। डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, स्ट्रेंथन द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जब भी मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको चैप्टर मॉड्यूल नंबर 3 है, तो जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड आता है, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली चीज है, उसके जो पैरामीटर्स बोले जाते हैं, तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप आंसर लिखने जाओ ना, तो सबसे पहले आप सबसे पहली प्रैक्टिस जो है, दैट इज वी विल कंसीडर इट एज board structure and committees, board structure and committees, जिसको हम लोग बोलेंगे BSC। पहला क्राइटेरिया प्रैक्टिस, किस पे ध्यान देना है वो। द सेकंड क्राइटेरिया, अगेन we will discuss about board process, BP। दिस सब्जेक्ट इज सब्जेक्टिव, तो आप उसमें कोई भी चीज अच्छे से लिख सकते हो, बिकॉज आपने सेक्शन नंबर 1 से लेके अभी तक 245 तक आपने जो भी पॉइंट्स देंगे, दे ऑल आर रिलेटेड टू द कंपनी। तो आप उसको गवर्नेंस में कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, वो समझना है। थर्ड, स्टेक होल्डर्स वैल्यू एनहांसमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे SVE। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, सॉरी, it is related to transparency and disclosure, and last but not the least, CSR and sustainability। हम लोग इसको बोलेंगे TD और इसको बोलेंगे CSRS, करेक्ट। तो मैं जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके दिमाग में आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो होगा उसके ऊपर, ये मॉड्यूल में रखा है, मैंने एक क्वेश्चन तो होगा, तो जब भी आपको दिमाग में आता है कि भाई व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द बेनिफिट, व्हाट आर द कंटेंट, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, तो सबसे पहले क्या याद रखने का, BSC। व्हाट इज BSC? board structure and committees। what is the board process? And the second one is of the board process, third one is of the SVE, stakeholders value enhancement। sir, stakeholders, you know, primary stakeholders and secondary stakeholders। stakeholders में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, सप्लायर्स भी आ जाएगा, इन्वेस्टर्स आ जाएगा,
ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, देन आफ्टर द CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपको एक चीज दिमाग में पकड़ के चलोगे, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आने वाला ही है। तो पूछे मैंने तुरंत आपको पहले ये चीज लिख देना था कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली डील्स विद दिस थिंग, बराबर। उसके बाद हमने देखा कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक और चीज आई, अभी यहाँ पे हम लोग एरो लगा के देख लेते हैं सब कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक था ट्रांसपेरेंसी, एक था डिस्क्लोजर जो नीचे है ही, बट मैं एक्स्ट्रा ये चीज इसलिए लिख रहा हूँ, हमने आगे देखा था। एक था ऑनेस्टी, बराबर है। एक था एथिक्स, बराबर। एक था रिपोर्टिंग के रिलेटेड था, अकाउंटेबिलिटी, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। सो एंड अकाउंटेबिलिटी, बराबर है। तो इतनी चीज सूरत दादा जैसा ड्रॉ कर ही देने का, उसमें ये सब चीजें ऐड कर देने की, दी ऑल आर रिलेटेड टू, हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यू, वैल्यू क्रिएशन भी आप लिख सकते हो कि भाई वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। उसके बाद सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स भी है, प्रैक्टिस तो आ गई है रही, बराबर। आप मॉडल्स बोल सकते हो, आप फ्रेमवर्क बोल सकते हो, आप क्राइटेरिया बोल सकते हो, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स वेयर इट डील्स विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बराबर है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं टेबल को थोड़ा, मैंने चार्ट को थोड़ा ब्रॉड कर दूंगा, और आपको पूछे या ना पूछे जाके पहले ये ड्रॉ कर देने का। अभी मैं थोड़ा आपको, लेट मी मेक दिस सेशन लिटिल इंटरैक्टिव, आपसे थोड़ी बहुत चीजें पूछ लेता हूँ। चलो इस पे मैं फोकस करूं, पहले बोर्ड स्ट्रक्चर पे। तो बोर्ड स्ट्रक्चर में हमने पूरा एक्ट देखा हुआ है बोर्ड के रिलेटेड। इनफैक्ट वी हैव आल्सो सीन द एंटायर सेक्शंस पर्टिकुलर फॉर द डायरेक्टर, बराबर है। तो डायरेक्टर्स में हमने देखा था TNOD, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो मुझे पता हो कि बोर्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज आनी चाहिए, और कमिटीज में, कमिटीज की बात करते हैं तो आपको पता है कौन कौन सी कमिटीज आपको पता है अभी तक। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ भाई ऑडिट कमिटी, फिर NRC, CSR कमिटी, बिल्कुल, स्टेक होल्डर्स रेम्यूनरेशन कमिटी SRC याद है तो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, याद है ना ये सब। दीज आर द डिफरेंट कमिटीज, you know very well about the, अभी if it is a listed company then you have to keep in line with the rules and the regulations of the SEBI, बराबर है। अदरवाइज कंपनीज एक्ट तो है ही उसके साथ। चलो बोर्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, तो कि भाई अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स थे, याद है तो आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिख सकते हो। तो बताएगा कौन कौन से थे। चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर होल टाइम डायरेक्टर, ह्यूमन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, याद है ना, फर्स्ट डायरेक्टर व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स इन, व्हेन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, तो उस टाइम पे पहला जो डायरेक्टर है उस सब्सक्राइबर्स ऑफ द MOA, बराबर है। तो दीज आर द डिफरेंट बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो हमने देखा था। और फिर उसमें भी हमने देखा था रेसिडेंट डायरेक्टर, he must be in India for at least 182 days or more during the previous year, and one of the director must be resident in India, बराबर। तो these are different types of, तो बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि सर वुमन डायरेक्टर्स कब चाहिए आपको, एट द सेम टाइम रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 1/3 ऑफ द TNOD, और रिटायर बाय रोटेशन कितने होने चाहिए वो भी हमने, और एवरीथिंग वी डिस्कस। तो बोर्ड स्ट्रक्चर और ये चीज रखी क्यों है, बिकॉज वी वांट टू गवर्न द, the purpose again, the purpose of keeping this chapter at last, once you are thorough with the fundamentals of the Companies Act, so you can easily incorporate all these things, बराबर है।
आप मुझे बताओ बोर्ड प्रोसेस में क्या क्या आएगा। अभी बोर्ड की क्या करनी है, प्रोसेस। अभी प्रोसेस में प्रोसेस कैसे करोगे, क्या होना चाहिए, मीटिंग, याद है ना सर, बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग कितनी थी, एक बोर्ड मीटिंग, एक जनरल मीटिंग, एक क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग में दो, एजीएम एंड ईजीएम, बराबर है सर। एक दो मीटिंग के बीच में टोटल चार मीटिंग होनी चाहिए, दो मीटिंग के बीच में बिल्कुल 120 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस कैसे होगी, प्रोसेस में सर व्हाट अबाउट द कोरम, बराबर है। व्हाट अबाउट द रिजोल्यूशन थिंग्स, प्रोसेस कैसे रहेगी, नोटिस कैसे जाएगा, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द बोर्ड रिलेटेड प्रोसेस, सब प्रोसेस किस हिसाब से रहेगी। स्टेक होल्डर्स वैल्यू एनहांसमेंट, आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट, वेंडर्स, इन्वेस्टर्स, बराबर है। फिर उन लोगों का सेटिस्फेक्शन सर्वे होना चाहिए, बराबर है। अच्छा, बोर्ड प्रोसेस में बहुत सारी चीजें मैं तो भूल ही गया, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, सो मेनी थिंग्स, मैं तो जस्ट नोट डाउन कर रहा हूँ। मैं ये सब चीजें भी यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आपको जितने भी पॉइंट्स पता है, आप ये पांच में से कहाँ पे रख सकते हो, वो रख देने, बराबर है। ट्रांसपेरेंसी, अभी देखते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिस्क्लोजर, कौन कौन सी चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज ट्रांसपेरेंसी में होनी चाहिए। सो वी हैव सीन दैट कि भाई जब भी हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सेक्शन नंबर 129, 130, 131, 132 याद है तो, बराबर है। इट शुड बी अटैच टू द बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए। अगर कोई रेजिग्नेशन दे रहा है तो रिमूवल के केस में यू हैव टू गिव ऑल दिस थिंग्स ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, आपको रीजन भी बताना चाहिए। वी हैव आल्सो सीन दैट व्हेन यू आर रिमूविंग द डायरेक्टर, मैंने आपको बोला था रिमूविंग द डायरेक्टर, आप निकाल रहे हो डायरेक्टर, बराबर है, तो उसको इन्फॉर्म करना है। और इन्फॉर्म करने के बाद एक प्रोसेस होती है कि भाई आपको वो बोल सकता है मीटिंग में कि नहीं बोल सकता, बराबर है। एंड यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल एंड द ट्रिब्यूनल फील्स दैट यस उसको बोलना, को बोलने देना चाहिए, तो अलाउ किया जाएगा। नहीं है तो फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, माने जो भी बोर्ड ऑफ कमिटी में जो सेक्रेटरी होगा, वो बोल देगा कि भाई दिस आर द रिटन रिप्रेजेंटेशन वी रिसीव, से एवरीथिंग। कौन सी चीज वेबसाइट पे रखनी चाहिए, माने डिस्क्लोजर में रखनी चाहिए, मैंडेटरी डिस्क्लोजर कौन से है, नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर कौन से है। हमने देखा था भाई कि सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट MR3 में बनता है, वो जो है वो एनुअल रिपोर्ट के साथ अटैच होना चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट में अटैचमेंट में आना चाहिए, बराबर है। Everything that it should be transparent and disclosure। CSR and sustainability, अभी पूरा चैप्टर जो है, अभी मैंने आपको वही बताया। CSR we have already discussed under section 135 of a Companies Act 2013, बराबर। बट ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी, वो पूरा जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये सस्टेनेबिलिटी वाले पार्ट, बराबर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने जितना भी अभी ड्रॉ करके बोला ना, वो ड्रॉ के अंदर आपको सब कुछ चीजें मिल जाएगी। अगर वो चार्ट आप याद रखोगे ना, तो पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लीट। सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फीचर्स, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखे और यहाँ पे फीचर्स। आप बोलोगे कि सर अलग अलग याद रखे, हेडिंग लगा देने का, फिर चार्ट में जितनी भी चीजें आपको दिखती है, बराबर है, सब चीजें लिखने की। सेटिस्फाई द, ये क्या आया, तो हमने तो, मैंने जो पांच प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, उसमें सब कवर होगा। ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल एंड जस्टिफाइबल पॉलिसीज अफेक्टिंग अगेन द, फिर ये क्या है, आइडियल ऑफ, तो हमारे केस में कौन सा। अच्छा पहले मुझे पांच प्रिंसिपल्स बता दो, पहला कौन सा था, BSC, बोर्ड स्ट्रक्चर एंड कमिटी। दूसरा BP, प्रोसेस। SVE, वैल्यू एनहांसमेंट। ED, डिस्क्लोजर। CSR और SRR, गुड मॉर्निंग सर, कॉर्पोरेट CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड, बराबर है। पांच प्रिंसिपल, चलो फटाफट बताओ कौन कौन से। BSC, दूसरा, तीसरा एनहांसमेंट, चौथा डिस्क्लोजर, पांचवा I did my PhD on this five one, बराबर। दिस इज द हार्डकोर बेसिक so far as this corporate governance is concerned।
अभी आपको पूरे कंपनीज एक्ट में से कोई भी पॉइंट उठा के दे और मैं बोलूँ 5 में से किसी एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब कर लोगे, कोई भी। बराबर है, यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। चलो, optimum use of resources of the company, reduce the risk through the due diligence process by following the risk management। तो हमने कौन सी कमेटी बनाई थी? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बराबर है। establishing the strong relation of the trust between the company and stakeholders, features the proper tool for prudent and participative, enhancing the of enterprise, accountability, innovation, professionalism, stakeholders recognition, ये सब चीजें वहां पे कवर हो गई है, बराबर है। चलो, दिस इज द मॉडल ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या है? टीडी, एसवी, सीएसआरएस और एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन ऑडिट क्वालिटी मैंने अलग से रखा है, बराबर। व्हाई दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड अलग अलग केसेस में? आगे जो मैंने एरो किया था, बताओ चलो। अकाउंटेबिलिटी, बराबर है, बीच में से एक एक एरो निकालता हूँ। फिर ऑनेस्टी, फिर फेयरनेस, बराबर है ना? अच्छा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिपोर्टिंग, बराबर, फिर एथिक्स। दीज आर द थिंग्स, नो यू, बस इतना चाटा लगा। पूछेंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा, वो तो पक्का ही है। मॉड्यूल रखा है मैंने, क्वेश्चन तो होगा ही। ये चार्ट पहले ड्रॉ कर देने, और चार्ट कैसे ड्रॉ करने का वो समझो। मैंने यहाँ पे क्या रखा है? इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा कि डिस्कस दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फीचर्स, तो आपको ये बीच में से वर्ड हटा देने का, और बीच में क्या रखने का? कॉर्पोरेट गवर्नेंस फीचर्स, और पूरा टेबल ड्रॉ कर देने। उसके बाद नो, you explain the features of the corporate governance mainly bifurcated into the 5 parts। पहला कौन सा? BSC, second, third SPE, fourth PD, fifth CSRR, CSRS, बराबर, clear? Now come to the ethics versus corporate governance। Ethics, it's a philosophical and the morally decent standard that corporation attempts to stand by. It is not necessary that the ethics only for the company, it is for the entire population, entire world। World should be behave ethically, बराबर है। But corporate governance क्या है? Process है सर। Sir, sets of criteria, framework, system, practice, methods, process. So all are the related to the CG. By means corporate attempts to remain as ethical as possible. Foundation: ethics is based on value and principle, while corporate governance is based on ethical value। आपको कोई बोले अभी, आपको आप बताओ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एथिक्स कौन से लेवल पे चाहिए? टॉप लेवल पे चाहिए कि मिडल में लेवल पे चाहिए कि लो लेवल पे चाहिए? सभी लेवल पे चाहिए, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे? टॉप पे, क्योंकि वहां से पॉलिसी बनती है, डिसीजंस लिए जाते। सो एथिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेवल, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड फॉर टॉप लेवल। वो वहां से प्रॉपर होगा तो फिर एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी जो है वो प्रॉपर सेट होगा। फाइन। सो एप्लीकेबिलिटी इज कंसर्न, इट अप्लाइज टू all level। Normal it applies at the top level as the policies and procedures are made। Ethics emerges naturally, established standard and process। Corporate governance is based on established standard and process, while ethics emerge naturally। अभी मैं आपको बताऊं कि भाई चलो आपका टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, बुक यहाँ पे रखी हुई है, देयर इज नो सुपरवाइजर, चॉइस इज योर। कोई देखने वाला है नहीं, कैमरा है नहीं, चॉइस इज योर। तो आपको वहां से देख के लिखना है या आपके आपके हिसाब से लिखना है? दैट डिसाइड्स योर एथिकल बिहेवियर, कि हाउ एथिकल यू आर, बराबर है। रेगुलेशन, सर एथिक्स में ऐसी कोई चीज होती नहीं है।
एथिक्स में कोई रेगुलेशन रहता है? नहीं। एथिकल वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स, पूरा खुला हुआ है, ओपन एंडेड। वाइल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इटसेल्फ फॉर रेगुलेशन, उसके लिए रेगुलेशन चाहिए। व्हाई गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों चाहिए, और वो भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। बैंकिंग में अलग है, इंश्योरेंस में अलग है, फार्मा में अलग है, बट क्यों चाहिए? आप जरा लॉजिकली सोचो। बीइंग अ इन्वेस्टर, उसकी जो भी लाइफ लॉन्ग सेविंग है उसने वो बैंक में लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, if बैंक उठ गए, so it doesn't it not only creates the trouble for the economy, but it crashes the entire lifelong saving of the people. तो जब तक आप पूरा प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं होगा, तब तक तो ये इट वुड डैमेज द एंटायर वर्ल्ड एज अ होल, एंटायर कंट्री एज अ होल। बराबर है। दैट्स व्हाई द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट ओनली अ फॉर्मेलिटी, इट्स अ डायर नीड ऑफ द company, dire need of the society, dire need for the country. Correct. Now management and the corporate governance मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। डेफिनेशन दी थी कैडबरी कमेटी ने, बढ़िया सी डेफिनेशन थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। तो भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मेन थीम माने मेन पर्सन कौन है? मैनेजमेंट है। बराबर है। अगर वो अच्छे होंगे, इफ दे बिहेव्स रेशनली एंड दे बिहेव्स एथिकली, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। चलो चलते हैं, इमर्जर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलो, जब भी दिमाग में आपके दिमाग में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है? क्यों क्यों आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस? मिसयूज ऑफ पावर्स, फिर कोई एग्जांपल्स याद आ रहा है? वो भी है। और कोई एग्जांपल? एग्जांपल कंपनी का कोई एग्जांपल कि साला इसने बहुत बड़ा गपला किया था, पूरा मूवी था, स्कैम मूवी था ना। एक था सत्यम, उसके बाद कोई स्कैम याद आ रहा है? हर्षद मेहता, केतन पारेख। सत्यम is the biggest one as it is considered as the Indian's Enron. Enron is a foreign company, US company, बराबर है। तो एनरॉन सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड देखा जाए तो एनरॉन, इंडिया में सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड देखा जाए तो सत्यम। दैट्स व्हाई सत्यम इज कंसीडर्ड टू बी द इंडियन एनरॉन। बराबर है। सो इमर्जेंस एंड द इवोल्यूशन, तो सबसे पहले काम करते सर उसका हिस्ट्री देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले से था कि नहीं। ठीक है। सो बेसिकली तो पहले के जमाने में तो राजा लोग थे। बराबर है। राजा આપણે નથી કહેતા ઘણી વખત તમારા જેવા રાજા હોય તો પ્રજા સુખી હોય, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा बोलते थे। बराबर है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट हैविंग हिस्टोरिकल रूट्स इन द एंशिएंट इंडिया। तो no society can exist without economic activity subject to fairness, transparency, justice in the economic activity. शायद आपको पता है, have you ever seen the movie of अकबर? अकबर का जोधा अकबर मूवी देखा था? उसमें आप देखोगे तो राजा जो है माने उस टाइम पे कैरेक्टराइज बाय ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जो है वो नॉर्मल लेमैन पर्सन के रूप में बाजार में चक्कर लगाने जाते हैं कि मेरी जो सिस्टम है वो कैसे रन हो रही है, ठीक है, फेयरनेस है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। बराबर है। सो मीन्स नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी सब्जेक्ट टू फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अगेन जो हमने आगे जितने भी वर्ड्स देखे थे वो सब, एंड जस्टिस इन द इकोनॉमिक। So that concept of the fairness and the justice is known as the corporate governance. So the corporate governance was known by the different names in Asian India. It was named as the Dharma, was the main regulator. Dharma ka is the Dharma. That was the main regulator. Fine. Then after different scriptures and their texts are there as Manu and Smriti. Then after Arth Shastra, Veda, Somveda, Brahaspati, ये सब चीजें जो है दैट इज एंशियंट टाइम में ये सब चीजें थी। पहले राजा महाराजा थे, पहले कंपनी वर्ड नहीं था। बराबर है। राजा रन करते थे। बट इट हैज बीन प्रॉपरली एंड सुपरबली एक्सप्लेन इन द कौटिल्यास अर्थशास्त्र। तो चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य
The Wazir of the Patliputra is also known as Vishnugupta. He detailed his 4 duties of the king. उसने किंग की 4 ड्यूटीज मानी गई थी. अभी उसने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हाँ ये वाला वर्ड, रिप्लेसिंग द किंग ऑफ द स्टेट विद द सीईओ. तो पहले किंग था, तो आज की हिसाब से हम कंपनी में सीईओ या एमडी को पकड़ के चलते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऐसा पकड़ के चलते हैं, और बाकी जो भी शेयर होल्डर्स है उनकी प्रजा है, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं. उसने 4 ड्यूटी बोली कि कोई भी राजा हो उसकी कितनी ड्यूटी होनी चाहिए, 4. पहली है रक्षा, बराबर है. दूसरी है वृद्धि, तीसरी है पराना, और चौथा है योगक्षेम. सर इसका मतलब क्या? नाउ यू ट्राई टू कोरिलेट फर्स्ट विद द राजा एंड द प्रजा, एंड देन आफ्टर राजा को हमने क्या बोल दिया, सीईओ, और उसके जो भी स्टेक होल्डर्स है वो हम लोग बोलेंगे उसकी प्रजा. तो पहला उसका ड्यूटी क्या है, रक्षा. उसका मतलब इन इंग्लिश वी कंसीडर इट एज अ प्रोटेक्शन. और प्रोटेक्शन के केस में हम कौन से एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे, करेक्ट. द सेकंड वन इज वृद्धि. वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, बोले वृद्धि. इन गुजराती इट इज वर्ड वृद्धि. वृद्धि मीन्स વધવું, expanding, growth. Growth in the terms of value enhancement for the, that is known as in our SV. Third one, palana. Palana means maintenance or compliance in a law abiding world and in spirit. सर हमें फॉलो करना चाहिए रूल्स. योगक्षेमा एंड मीन्स हैप्पीनेस, प्रजा खुश होनी चाहिए. इट इज इक्विवेलेंट फॉर इंप्रूविंग द वैल्यू ऑफ अ पर्सन. सो दीज सी बेसिकली इट इज नॉट इन योर बुक. हाँ, तो आपके बुक में ये सब चीजें नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट समझोगे कैसे, एंड इट इज रिक्वायर्ड. तो मैंने सोचा कि ये चीज आप समझोगे तो इट वुड बी वेरी इजी, क्योंकि पहले के केस में राजा लोग थे, फिर के केस में सीईओ. ठीक है, वहां से ट्रांसफॉर्म होके आए होंगे यहाँ, बराबर है. सो आई होप ओवरऑल 4 ड्यूटीज आर क्लियर. दिस इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. पहली कौन सी थी, रक्षा. दूसरी वृद्धि. तीसरी पलाना माने मेंटेनेंस या कॉम्प्लायंस, एंड द फोर्थ वन इज योगक्षेमा मींस हैप्पीनेस. आई होप बैकग्राउंड इज क्लियर. नीड मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमने देखा ऑलरेडी ये सब कंपनी के नाम है. लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गई. देयर आर मेनी अदर बिग नेम्स, मेरिल लिंच, एआईजी, फ्रेडी मैक, फैनी मैक, एचबीओएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ब्रैडफोर्ड, ब्रिंगली, फोर्टिस, हाइपो अलायंसेस. The urgent need for the CG was first in India in April 1992 with the Harshad Mehta security scam. वो पूरा मूवी था scam 1992, बराबर है. Then after Ketan Parekh, then after Satyan fraud, it has been referred as India's Enron, has sparked the debates over the corporate governance issue. That's why in India because most of the company or the corporate would like to paint the rosy picture. जो है, जो दिखता है वो होता है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, बराबर है. सो दैट इज द केस. नाउ मूविंग फर्दर, आई होप द थियोरी इज क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, डेफिनेशन क्लियर. ओके, मूविंग फर्दर, थियोरीज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द बोर्ड मेंबर्स. आप बोलोगे कि सर ये सब चीजें हमें क्यों पढ़ाई जाती है, डज इट हैव एनी प्रैक्टिकल रिलेवेंस? यस, इसी का ही रिलेवेंस. बाकी सब तो एक्ट में लिखा हुआ है, बट इफ यू आर नॉट फॉलो द एक्ट एथिकली और इन अ लॉ इन ट्रू स्पिरिट, तो फिर तो कुछ काम का ही नहीं है, बराबर है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप जॉब करने जाओगे, देन योर बोर्ड और मैनेजमेंट विल टेल यू जो ने कुछ कई कमाओ रस्तो નીકળે એવો છે illegal so that we can save the money. But every time remember, show the path, show the both path. This is real, this is legal, and this is illegal. I am ready to come with you on the legal path. I cannot come with you on the illegal. Ultimately it makes we can say, अगर आप इलीगल पाथ पे जाते हो कितने टाइम तक जाओगे, यू मे अर्न इन करोड्स, बट लेटर ऑन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. आप तो जाओगे बट द स्टेक होल्डर्स दोज इन्वेस्टेड करोड्स ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज इन योर कंपनी, वो तो चली जाएगी, उन लोगों का क्या. दैट इज द केस. चलते थियरीज के ऊपर. सो द पहली थियरी है द थियरीज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू द बोर्ड मैनेजमेंट. पहली थियरी कौन सी है, एजेंसी थियरी. बोलने की मुझे कोई जरूरत है नहीं. Principals, shareholders. Shareholders are considered to be principals,
and board of directors are considered to be agent. बराबर है. So the theory state that the owners act as a principals and the managers act as a agent. The owners or the shareholders, इसको मैंने क्या बोला? Principals. They define and set the overall purpose of corporate, and the managers performs responsibly to attain this purpose routine work. However, he explains the main issues that originates from the separation of the control and ownership. ये main issue है, separation of the ownership and control. अलग अलग है. कभी कभी केस में हमने देखा ड्यूअलिटी होती है, एक ही बंदा दो पोस्ट परफॉर्म कर रहा है, मैं ही सीईओ, मैं ही एमडी. There should be a separation of the ownership. There should be a separation of the ownership and the control. अलग अलग होना चाहिए. Otherwise, every coin has a two sides. बराबर है. तो फिर एक का पॉजिटिव भी आप बचाने जाओगे तो दूसरी साइड पे मे बी पॉसिबल कि इट वुड क्रिएट अ हैवॉक टू द कंपनी. मैंने एक चार्ट ड्रॉ करके रखा है. दैट्स हाउ द एजेंसी थियरी. समझ में आ जाएगा. एक नंबर प्रिंसिपल्स और ओनर्स. ए वो लोग क्या करेंगे? डिफाइन एंड सेट्स ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. दिस प्रिंसिपल दे अपॉइंट्स. किसको अपॉइंट करेंगे? दो नंबर पे आओ. किसको अपॉइंट करेंगे? एजेंट. वो जो एजेंट है वो क्या करेगा? कैरी आउट द रूटीन गोल्स एंड द कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट बराबर इन अ गुड फेथ, एक्टिंग इन अ गुड फेथ. बट most important part, from this way and from this way there should be a separation of the ownership and control of the. This is all about which theory? Agency. Yeah, I hope it is clear, guys. Again, it is not available in your book, but this chart gives a clear picture. If it is possible to draw kar lena. Stewardship theory. Steward. So what is the meaning of the steward as per the law, as per the dictionary meaning? So the stewardship means the act of taking care of or managing something. For example, property. कोई property को संभाल रहा है. Estate हम बोलते हैं ना, estate agent. An organization, money or valuable objects. तो कोई किसी की प्रॉपर्टी संभालना. तो शेयर होल्डर्स जो है, माने जो रियल ओनर्स है, जो प्रिंसिपल है, उन लोगों ने आप लोगों को तो कंपनी दे दी, तो आपको उसको संभालना है. वो ऐसा बोल रहा है कि आप एजेंट नहीं हो, आप एजेंट. दिस थियरी स्टीवार्डशिप स्टेट्स दैट यू आर नॉट द एजेंट. बराबर है. आप स्टीवार्ड का मतलब आप प्रॉपर्टी के रक्षक हो. बराबर है. So it refers to the board's responsibility to look after the conduct of the business and supervise the management towards the company's routine affairs. What is the meaning of the steward? Steward means या तो आप मैनेजर हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर, आप कंट्रोलर, आप केयरटेकर हो. पहली थियरी की क्या बोल रही थी? तू तो एजेंट है. किसी को एजेंट बोले तो अच्छा नहीं लगता, बट तू क्या है? केयरटेकर. यू आर केयरटेकर ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस इज लाइक थियरी बोल तो एक ही रही है, but from the different angle. So according to this theory, employees and the managers are responsible for the protecting the organization's resources as well as the property interest when the owner is not present. And managers should run the organization in the same manner as their own, खुद का business ऐसा समझा. I hope that concept is clear. पहली थियरी कौन सी थी? दूसरी थियरी स्टेवardship. चलते हैं स्टेक होल्डर्स थियरी. स्टेक होल्डर्स, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आप बोल सकते हो. इंटरनल एंड एक्सटर्नल. स्टेक होल्डर्स थियरी व्यू a company as a input output system. और आपको शायद पता हो तो अर्ली केसेस यू नो इनपुट, then after process, and then after output. If you enter the wrong input, it will process wrongly and you will get the wrong output. And if you enter the right input, then you will get the right output. Garbage in, garbage out. GIGO, ego. In a corporate mix, all the stakeholders including lenders, employee, client, vendors, surrounding community, government should be considered. A corporate entity, in their opinion, is there for the stakeholders, not for the owners or shareholders. ये भी तो गलत है. shareholders के लिए भी है और stakeholders के लिए भी है, but stakeholders theory is basically focusing only on the stakeholder. कि भाई सिर्फ और सिर्फ stakeholder पे ध्यान दो. बराबर है. हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए.
as they all have a stake. What is the meaning of a stake? Interest. Interest in a company, but sometimes odds. Managers and the corporate both are accountable for balancing the interest of these stakeholders, and the stakeholders are in agreement with the one another. तो सब लोग बोलते हैं managers and the stakeholders are accountable. ऊपर के केस में managers and the stakeholders are the caretakers. ऊपर बोलते थे managers and the stakeholder managers are the agent. सब लोग उनको और they are managing, वो लोग थोड़ी ना आएंगे. तो according to the different theory, ऐसे देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी इज एजेंसी थियरी. काम उसी के ऊपर चलता है, बराबर है. किसी को कैटेकर बोलने से कोई अच्छे से यूज कोई अच्छा काम नहीं करने वाला है. नाउ अनदर इज ऑफ द सोशियोलॉजिकल थियरी. एंड आफ्टर considering all these things, even you have been taught even in your financial management, there are two objectives of the financial management: profit maximization and the wealth maximization. Here wealth means a value, and there is one object, growth, SVE, stakeholders value enhancement. अच्छा, एक और चीज पे ध्यान दो. सर ये नाम आपने सुना है, EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दिस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ वैल्यू क्रिएशन टूल. ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में नॉर्मली आप कैसे कैलकुलेट होता है पता है? आर माने रिटर्न, सी माने COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC into capital employed, you will get the EVA. तो सर आपने वैल्यू क्रिएशन में EVA को क्यों लिया? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, ये मिसिंग होता है. COC हम लेते ही नहीं, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द COC इन रियलिटी आल्सो, बराबर है. तो EVA अगर आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है. इफ EVA आंसर इज अ पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट योर फर्म इज वैल्यू क्रिएटर. ये मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ आपको, शायद आपने पढ़ा है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, बट EVA का मेन मतलब ऐसा. इफ इट इज अ नेगेटिव, उनका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है. फर्म इज वैल्यू destroyer. This is the interpretation of EVA, value addition. कॉन्सेप्ट इसलिए मैं समझा रहा हूं बिकॉज व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ कंसीडर्स द सोसाइटी, बराबर है. तो नाउ लेट अस कम टू द सोशियोलॉजिकल थियरी. और शायद अभी पता है आपको, तो एक पूरा स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस हुआ है, SS सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बराबर है. आई रिटन द एंटायर पेपर, research paper. Now it is published in the international journal for the Indian social stock exchange, and that becomes the standard paper. अब इसके ऊपर कोई भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिखेगा, they have to cite my paper basically, क्योंकि मेन पॉइंट जितने भी थे वो सब मैंने वहां पे कवर कर लिए. इंडिया सोशल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. Sociological theory. This theory focuses on the board composition as well as its implications for the social power and wealth distribution. The direction the corporation faces the broad challenges of mutually reinforcing the directorship, concentration of the directorship in the hands of a powerful members of the society. खुद की कंपनी, we will see in this chapter एक concept आएगा, फैमिली कंपनी है, फैमिली बिजनेस का. इंडिया में जितनी भी कंपनी है उसमें से 90% कंपनी है ना फैमिली कंपनी है. फैमिली कंपनी आप समझ सकते हो, मुकेश भाई है, उसके बाद अदानी है, इन लोगों की टाटा है, उन लोगों की फैमिली बेस्ड कंपनी. उसमें गलत भी कोई चीज नहीं है, बराबर है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? इमोशंस अटैच होंगे. देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क फॉर द सक्सेशन प्लानिंग. सक्सेशन का मतलब हु इज नेक्स्ट, आपको कौन है, बराबर है. दैट इज द केस. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑफ द ट्रस्टशिप थियरी. पहली कौन सी थी? दूसरी स्टेक होल्डर्स, स्टेवारशिप. तीसरी स्टेक होल्डर्स. चौथा
सोशियोलॉजिकल, और पांचवा ट्रस्टशिप। Directors are the person who are given the authority to run the business by the shareholders, which may be a huge amount of money. So the relationship of the trust is very important for the performance by the directors who take the major decisions of the company. I can say this is somewhat related to the agency, क्योंकि मैं आपको पावर दे रहा हूँ, but that is in terms of trust. प्रिंसिपल ऐसा बोलेगा, शेयर होल्डर्स बोलेगा कि भाई आई एम हैविंग अ ट्रस्ट ऑन यू, दैट्स व्हाई मैंने आपको पावर दिए। आई होप दिस थियरी इज क्लियर। तो हमारा यहाँ पे टोटल 3 मॉड्यूल में 3.1 है, 3.2 है, 3.3, 3.4 एंड 3.5 ऐसा। The 3.1 is basically related to the CG बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बराबर है। 3.4 CSR के ऊपर है, 3.5 सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। अभी ये दो देखते हैं। 3.2 practices, corporate governance practices and codes in India. तो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल स्टेज कि भाई इंडिया में स्टार्टिंग कहां से हुआ, ईयर एंड सीजी रेगुलेशंस इन इंडिया। मैंने आपको पूरा चार्ट दे दिया है, हो सके तो ये चार्ट याद रखना। धीरे धीरे 1998, 99, 2000 इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं। एक ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी थी, उसके बाद CII 2009 में आया, उसके बाद ये तो 2013 में कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, यू नो वेरी वेल। लास्ट में एक रिकमेंडेशंस आया था, उदय कोटक कमेटी ने दिया था, ठीक है। बट योर मॉड्यूल इंक्लूड्स only 2 to 3 suggestions and the recommendations. This is the Cadbury committee. This is a benchmark for international benchmark for the corporate governance. तो दिस कैडबरी कमेटी, इनफैक्ट हमने डेफिनेशन भी सबसे पहले कैडबरी कमेटी की ही देखी है। तो कैडबरी कमेटी की डेफिनेशन क्या बोल रही थी? कॉर्पोरेट कंपनी गाइडेड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय, बराबर, डायरेक्टेड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय। दिस कैडबरी कमेटी द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया सेट अप। Purpose of this committee is to recommend the desirable corporate governance practices. कौन सी 5 प्रैक्टिसेस थी? CSR तो याद रहेगा, एंड सस्टेनेबिलिटी, बराबर है। अभी देख लो इन लोगों का रिकमेंडेशन, देखो कहां पे है। ओनली लिस्टेड कंपनी कंस्टिट्यूट, तो यहाँ पे कौन सी चीज आएगी? बोर्ड स्ट्रक्चर एंड कमिटी। उनका तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3, 4 ये दे ऑल आर फोकसिंग ओनली ऑन AC ऑडिट कमिटी। वो बोल रहे एक्सटर्नल ऑडिटर एंड द फाइनेंस डायरेक्टर शुड अटेंड द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी, बिकॉज दे थॉट दैट if you want to have the standard corporate governance, your most important parameter is your audit. वो ऐसा सोच रहे थे, बराबर है। Audit committee should discuss with the external auditor about the scope of audit, coordinate where more than one audit firm is. माने हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि this is clear. This is the recommendation of the Cadbury committee. Moving further, Rahul Bajaj committee, again set up by मैंने बोला था CII, Confederation of the Indian Industry. वो कमेटी, वैसे तो मैंने आपको बोला भाई 1998 से लेकर 2017 तक की कमेटीज है। अभी हर एक कमेटी किसके कौन कौन सी रिकमेंडेशन लेके आई, बराबर है। कितना याद रखोगे? सो इट इज बेटर वो 5 चीज याद रखनी, बराबर है। पर्पस, only listed company with the turnover of 100 crores and the paid up capital of 200 which is lever should set up AC. What is AC? Within 2 years. चला इसका भी फोकस किसके ऊपर है? फिर हमें लगेगा कि सर ऑलवेज वी बिलीव इन कट कॉपी एंड पेस्ट। उन लोगों ने, फॉरेन वालों ने बोला कि ऑडिट कमेटी पे ध्यान दो, ऑडिट कमेटी हमने भी डाल दिया, बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी इन लोगों ने निकाल दी, लिया ही नहीं। एक है कुमार मंगलम, ये लिया हुआ। उसके बाद उदय कोटक कमेटी जो थी 2017 में, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। और ये कुमार मंगलम बिरला, कोई बात नहीं, देखते। AC शुड असिस्ट। व्हाट इज AC?
should assist the board for the effective supervision of the financial support. Moving further, KM Birla Committee, Kumar Mangalam Birla, set up by SEBI. ये बहुत टाइम तक चला था. The key recommendation of the KM committee is focusing on the clause 49. शायद आप लोग कॉमर्स में होंगे तो शायद ये क्लोज 49 आता था ऑफ अ लिस्टिंग एग्रीमेंट. अभी तो लिस्टिंग एग्रीमेंट निकल के क्या आ गया है, एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से भी एलओडीआर. तो पहले क्लोज 49 बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Important aspect of the corporate governance of India is clause 49 of the SEBI guideline, which is ameliorated the concept of the corporate. Main focus यही था. कोई भी ऐसा बोला ना कि corporate governance कंपनीज एक्ट 1956 की बात करूँ तो SEBI, तो SEBI ने बोला था कि भाई there is a listing agreement that every listed company has to follow, और वो listing agreement में clause number 49 जो था that is specifically for the corporate. उसका रिकमेंडेशन क्या था, देखो उसने करीबन 4-5 ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. क्या आएगा ये, बोर्ड स्ट्रक्चर एंड कमिटी. हम लोग बोर्ड स्ट्रक्चर पूरा बीएससी लिखेंगे. बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर मस्ट मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स. माने मीटिंग की बात हुई, क्या बात है, बोर्ड प्रोसेस बराबर है. ऑडिट कमिटी मस्ट मीट एटलीस्ट थ्राइस. And committee, audit committee, a quorum, look, quorum, board process. Establishment of which committee? Compensation committee. Semi-annual statement of the financial performance, T&D, transparency and I hope you are getting the point. Basic principles of good governance. Sir, अब बताओ कौन से प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल कौन से. दूसरा बोर्ड प्रोसेस. फिर आप हर बार ऐसे लिख लिख के जाओगे, उससे थोड़ा बहुत वो लिखने का, थोड़ा बहुत सेंटेंस फॉर्म में लिखने का, so it becomes very easy. क्योंकि लोगों ने भी पूरे 30-40 पेज भर के दिए. I have compressed that 30-40 pages into 18 pages and that too in the logical manner कि भाई आपको याद रहे. बराबर है. तो उन लोगों ने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स है उसमें आप पहले 5 प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं. फिर बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स 2 जगह पे एप्लीकेबल है, बोर्ड लेवल एंड बिलो बोर्ड लेवल. उसमें भी उनका मेन फोकस जो था ना वो किसके रिलेटेड था. आईडी मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शायद आपको पता हो तो हमने 149(8) में पूरा देखा हुआ था कि भाई उसका क्या बोलते रोल क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और शेड्यूल नंबर टोटल 7 शेड्यूल है. उसमें से 4th शेड्यूल में कोड फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दिए हुए हैं पर्टिकुलरली फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो गाइडलाइन ऑफ अ प्रोफेशनल कंडक्ट, उसका रोल फंक्शंस कैसा रहेगा, ड्यूटीज, दे ऑल आर रिलेटेड टू होम. And they thought that independent director plays a very significant role in a corporate. Manner of appointment, reappointment, resignation, evaluation process, separate meeting and. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा सेक्शन एक बार देखना पड़ेगा. 149(8) along with शेड्यूल नंबर 4. बराबर है. शेड्यूल 1 क्या है, 2 क्या है, डेप्रिसिएशन, 3, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5 में कितने पार्ट से. तो फिर पहले पार्ट में क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ WTD मैनेजर एंड MD विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. पार्ट 2 रेम्यूनरेशन, शेड्यूल नंबर 5. बराबर है ना. The overall remuneration shall not exceed 11% of the net profit, and net profit is to be decided as per section 198. Schedule 3, I'm sorry, part 3. अच्छा, part 2 में कितने सेक्शन थे, section 1 2 3 4 5. 1 director, I'm sorry, remuneration payable by the company having a share capital. It does not have the share capital, I'm sorry, no profit or inadequate profit. तो शेड्यूल नंबर 5 में रेम्यूनरेशन आता था. कितने था, 6 में यार.
हेलो हेलो। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी वो अब नहीं होगा शायद, वायर जो था ना वो। ओके, आई होप इट इज क्लियर आपको। हाँ, शेड्यूल में पूछ रहा था ना। टोटल शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में हमने पार्ट बनाए थे। पार्ट 1 2 3 4, 4 पार्ट है। पार्ट 2 में टोटल 5 सेक्शन है, सेक्शन 1 2 3 4 5। एंड पार्ट 2 इज बेसिकली फॉर द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन विच इज पेबल बाय द कंपनी हैविंग अ प्रॉफिट। सेकंड, रेम्यूनरेशन पेबल बाय द कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। थर्ड, नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है ना स्पेशल सर्कमस्टांसिस, वो प्रोफेशनल डायरेक्टर के लिए रखा है। बराबर है। तो शेड्यूल 5 उसके लिए, 7 सीएसआर के लिए। चलो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स। अभी देयर आर नो एज सच अ गुड पैरामीटर्स अवेलेबल फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग। सर ये रेटिंग क्यों होती है? तो फॉर एग्जांपल भाई, मुझे कोई चीज जाननी है कि एक्स वाई जेड कंपनी है, वो एक्स वाई जेड कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेटिंग हाई है, लो है कि मीडियम है। फॉर एग्जांपल हाई है, उसका मतलब कंपनी हर एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है। बराबर है, माने दिस इज विद इन द कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क कंपनी। बराबर है, उसको आप लीडरशिप कंपनी भी बोल सकते हो। बराबर। मीडियम, सर कभी कभी बहुत सारे प्रोविजंस में से 10 में से 7 8 प्रोविजंस कॉम्प्लाई करती होगी, बाकी नहीं करती होगी, मैंने वो मीडियम में है। 10 में से 3 या 4 करती है या 5 करती है, 50% है, उसको बोलोगे वीक कॉम्प्लायंस। वेरी क्लियर that I did in my PhD. There is no any ratings, specific rating, but आप उसका corporate governance का स्कोर कार्ड बना सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो। On which parameter? I have report on the 5 parameters. So now let us have the rating. It is the opinion on the company's central CG system, its compliance towards the various parameters deployed for the assessment. Objectives. Why this rating is required? तो सबसे पहले आप बोलो, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी मुझे बताओ कि कौन कौन से ये रेटिंग से क्या आपको जानने को मिलेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का कॉम्प्लायंस का स्टैंडर्ड कैसा है, कंपनी का बेंचमार्क स्टैंडर्ड कैसा है। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं बैंकिंग कंपनी उठाता हूँ 10 कंपनी, उसमें से मुझे रेटिंग देनी है, तो मैं कौन सी कंपनी को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से रेटिंग दूँ? बेस्ड ऑन विच पैरामीटर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैरामीटर। रेटिंग्स जो है ना वो एक अथॉरिटीज, सॉरी बोलते कंपनी एजेंसीज भी कर सकती है, कंपनी खुद भी कर सकते हैं, ऐसा देयर इज नो एनी पैरामीटर। कर सकते हैं कैसे? अभी मान लो इफ आई एम अ रिसर्चर, अभी मैं रिसर्चर हूँ, मुझे कंपनी की रेटिंग दिखानी कि कौन सी कंपनी प्रॉपरली रेट पे, माने कौन सी कंपनी का कौन सा रेट है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 2010 से लेके 2023, मान लो कि 10 साल या 15 साल की मुझे रेटिंग निकालनी है। बराबर। उसके बाद मैं पैरामीटर्स ले लूंगा इस साइड पे, और एक सीट बनाऊंगा। वो सीट में सीट नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल 10 बैंक है, तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, वो सबका 10 साल का डेटा निकालूंगा। अभी मान लो मैं रेटिंग कैसे डिसाइड करता हूँ? सो देयर इज नो एनी रेटिंग फॉर्मेट, बट मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ ना कि मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ 0 1 और 2, 0 मार्क्स 1 मार्क और 2 मार्क। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी, एक प्रैक्टिस है कि भाई साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए, वो आपको पता है। बराबर, एटलीस्ट मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए। ये एक मैंने स्टेटमेंट लिया। मैं चेक करूंगा कि अगर कोई कंपनी 4 मीटिंग फॉलो नहीं करती है तो मैं उसको कितने मार्क्स दूंगा? 0। चारों 4 मीटिंग फॉलो करती है तो 2 मार्क्स, और 2 3 करती है तो 1। ऐसे तो मैं रेटिंग दे सकता हूँ। ऐसे में अलग अलग 5 प्रैक्टिस है मेरे पास, उसमें से मेरे पास करीब बना है प्रिपेयर्ड 130 क्वेश्चंस, और फिर मैंने 130 क्वेश्चंस के सामने ऐसे पैरामीटर्स लगा दिए 1 2 0 1 और 2, और उस हिसाब से फिर मैंने टोटल लगाया, और उसके हिसाब से मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ टोटल लगाने के बाद। एंड देन आई कैन आइडेंटिफाई विच कंपनी इज अ गुड। अब बोलोगे कि सर डेटा कहाँ से मिलेगा? ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, उनको अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि कितनी मीटिंग की, डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन दिया, स्टेक होल्डर्स ग्रीवांसेस सॉल्व किया कि नहीं किया,
सब चीजें दिखानी पड़ेगी. सो इट इज अवेलेबल. इनफैक्ट एजेंसीज आर ऑल्सो अवेलेबल, वो भी आपको रेटिंग करके दे सकती है. बराबर. रिपोर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. सॉरी, खुद को रेट करने बैठेगी तो उनके पास प्रूफ होने चाहिए ना. अगर मैं अपने को मैं प्रूफ कैसे करूं? अगर मान लो मैंने 4 मीटिंग की है तो मेरे 4 मीटिंग की रिकॉर्ड तो एमसीए पे होगी ना. सबमिट तो करना पड़ेगा आपको. एमसीए के पोर्टल पे रिपोर्ट तो सबमिट करना पड़ेगा. अगर आपने, मैं ऐसा बोलूँ, एक स्टेटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, वे आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो भाई जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आप अपॉइंटमेंट करोगे तो आपको आरओसी को नहीं बताओगे, फॉर्म फाइल नहीं करोगे, तो आपका जो डेटा है वो कहाँ पे दिखेगा? एमसीए के पोर्टल पे दिखेगा. तो आप भी जब रेटिंग करने बैठोगे तो आपकी रेटिंग और मेरी रेटिंग सेम ही आने वाली, बिकॉज मैं भी वही डेटा यूज करने वाला हूँ जो डेटा अवेलेबल है और जो ऑथेंटिकेट है. समझ में आ रही बात? खुद को रेट, देयर इज नो एनी सच क्राइटेरिया दैट इज क्वालिटेटिव क्राइटेरिया. ऐसा नहीं है आप क्वालिटेटिव क्राइटेरिया को कन्वर्ट कर रहे हो क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया. इफ आई से कि भाई ऑडिट कमेटी में 50% से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए ऑडिट कमेटी में. हाँ, 177 सेक्शन, 50% से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. तो जब आप आपका एनुअल रिपोर्ट बनाओगे, चल. हाँ, तो this with you. बाबा, जबरदस्त. हाँ, मतलब दादा अभी तो हमने खुद का भी असेसमेंट करने बैठेगी तो भी वही रेट निकलेगा. बट मैं ऐसा बोलूँ कि चलो मैंने जो क्वेश्चंस निकाले फॉर एग्जांपल, वो मैंने निकाले 130, बट 130 में से 100 क्वेश्चंस तो कॉमन ही रहे. वो तो कॉमन ही रहे. अभी वो लगे स्टेक होल्डर्स ग्रीवांसेस. आपने स्टेक होल्डर्स जो ग्रीवांसेस थी वो रिड्रेस किया कि नहीं किया? तो जो भी आप रिड्रेस करते हो तो स्टेक होल्डर्स जो है वो जब आपके ऊपर भेजेगा वो तो कहीं ना कहीं पे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा होगा आपको जो कंप्लेन करना है, या तो फिर कोई लेटर में भेजा होगा. बराबर है. तो जब आप सॉर्ट आउट करते हो उसको तो उसका रिस्पॉन्स भी तो आपके पास रखोगे, एंड यू विल सबमिट दैट रिस्पॉन्स टू द आरओसी ऑल्सो. एक टिकट जनरेट होती है, शायद आपको पता हो, एसआरएन नंबर बनता है. एसआरएन नंबर बनता है, वो एसआरएन नंबर से ट्रैक होता है कि भाई मेरा विकास स्टेटस क्या है, भाई रिट्रेस द ग्रीवेंसेस और नॉट, सब चीजें होती है. तो नॉर्मल बेसिस पे बहुत कम चांसेस है कि भाई आप गफला कर सकते हैं. बराबर. बट अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, ये सालों तक रहने ही वाला, बिकॉज इट इज लाइक अ टिक बॉक्स. अगर आप सिर्फ टिक बॉक्स के लिए यूज करते हो कि भाई कॉम्प्लायंस करना था कर दिया, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं. ऑनेस्टली देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जो डिस्क्लोजर होते हैं, वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर भी होते हैं और नॉन मैंडेटरी भी होते हैं. टाटा इज द कंपनी विच डिस्क्लोज both the disclosure, mandatory और नॉन मैंडेटरी. और मेनी ऑफ द कंपनी दे थॉट अभी नॉन मैंडेटरी है तो मैं દોડાયું બનીને શું લેવા હું ડિસ્ક્લોઝ કરું? इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग. बट मेनी कंपनीज आई हैव सीन नॉन डिस्क्लोजर भी कर दो ना भाई, जरूरत है नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, रख दो. दैट इज द केस. विच आर द असेसमेंट क्राइटेरिया? तो मैं पहले क्राइटेरिया लिख देता हूँ. पहला कौन सा होगा? फिर फिर उसके अलावा बाकी आप जो भी है वो समझ लेना.
है यहाँ पे डिस्क्लोजर है, कॉम्प्लायंस है, अर्निंग्स, रिलेटेड पार्टी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर ग्रीवेंसेस, वेंडर ग्रीवेंस। हाँ, ये सब अलग अलग क्राइटेरिया है, बट आप यहाँ से अलग अलग बना सकते हो। बीपी में क्या आएगा, एसवी में क्या आएगा, टीडी में क्या आएगा, सीएसआर में क्या आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज ईएसजी। ई माने एनवायरमेंटल, एस माने सोशल, एंड जी माने गवर्नेंस। गवर्नेंस अभी अभी हमने देखा। ई एनवायरमेंटल, तो भाई हमने देखा कि भाई ईएसजी दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। जी तो था ही। अभी ई माने एनवायरमेंट, यू हैव टू कंसीडर द एनवायरमेंट। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड द क्लाइमेट फाइनेंस। Those companies who are engaged in the climate, those who are taking up the investment projects, who are keeping in the mind of the environment कि भाई हम लोग एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है। जो हाईवेज बनने वाले हैं वो अभी ऐसे हाईवेज बनने वाले हैं कि हाईवे जो है वो ऊपर से जाएगा और नीचे से एनिमल्स को जाने के लिए आप पूरी एक टनल जैसा बनाओगे, जिसकी वजह से यू आर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स ऑल्सो। नेक्स्ट टाइम जो भी हाईवेज बनेंगे वो सब ऐसे बनेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर पासिंग द रोड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया, तो एनिमल्स तो अभी वो तो कहीं पे भी घूम सकते हैं, बराबर है, और उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो कीपिंग इन दैट माउंट ऑफ द एनवायरमेंट, वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अभी जो भी होगा वो बनेगा उस हिसाब से बनेगा कि एनिमल्स वहां पे नहीं आ सकता ऊपर भी, और एक टनल जैसा बनाएंगे सो दैट दे कैन फ्रीली मूव अराउंड। बराबर है, दैट इज द केस। ऐसे प्रोजेक्ट्स वो लोग ध्यान में लेते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, दे विल कंसीडर कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स बनेगा वो प्रोजेक्ट्स जो है वो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होगा। जैसे आपने अभी देखा हो तो भाई जितनी भी नहरें जो जाती है उसके ऊपर दे हैव ऑन स्लैंटिंग, दे हैव प्लेस दी सोलर पैनल्स। जो कैनल जो होती है, कैनल है, रोड्स है, ब्रिजेस है, ठीक है, जैसे जैसे उनको लगता है कि भाई यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग लगाते जा रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो एटलीस्ट वो वाला जो एरिया है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां से निकल जाए। Getting my point? So any company those who like to take up a projects which are environmental related projects, ठीक है, उसको जो फाइनेंस करना होता है उसको क्लाइमेट फाइनेंस। If you want the entire article, that article I have published in the chartered secretary. तुम्हें ग्रुप में मोकली भेज देता हूँ। तुम छह आर्टिकल हाँ एक ग्रुप में છે આપડા। हाँ यार आप लोग पढ़ो यार। भेजा था। दैट इज ऑन द ईएसजी इटसेल्फ। हाँ हाँ ये रहा। 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को भेजा था। हाँ 11 अक्टूबर को मेरी पीएचडी खत्म हुई थी। राइट। इज ईएसजी रियली अ वैल्यू प्रपोजिशन और सिंपली अ ग्रीन वॉशिंग, ये वाला। और ये जो चार्ट मैंने लिया है वो वहीं से लिया हुआ। तो ईएसजी बेसिकली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। जैसे मैंने अभी आगे बताया था कि यू वांट टू अर्न मनी, मनी मीन्स अ प्रॉफिट। यू वांट टू अर्न मनी, मनी मीन्स अ प्रॉफिट, मुझे अर्न करना है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बिना कैपिटल से प्रॉफिट मिलता नहीं है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो जब पहला पी जो था, पी प्रॉफिट वाला पी, दैट इज अकाउंटिंग कैपिटल। अकाउंटिंग कैपिटल आपने लगाया, इकोनॉमिक कैपिटल लगाया, प्रॉफिट हुआ। दूसरा था पीपल, माने ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तीसरा था एनवायरमेंटल कैपिटल, प्लैनेट, then environmental capital. So you are applying, you are investing all this capital and you want a profit. And that profit is the first in terms of the profit, people and planet, all these three things. And that's why this concept of ESG came into picture.
कि भाई अभी ऐसा नहीं चलेगा कि भाई जब तक, क्योंकि आप सोसाइटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। पहले आपने धीरे पहले तो गवर्नेंस, पहले तो आप कुछ काम का कुछ सोसाइटी को भी कंसीडर नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। You are ignoring the society, though you are earning from the society, but still you are ignoring the society. Then later on the stage, now there is a shift from the कि भाई सोसाइटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, प्रॉफिट से थोड़ा पीपल पे आए। अभी पीपल पे आने के बाद सोचा कि भाई सोसाइटी है तो साथ में हमें एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, वी कैन ओनली लिव इजीली एंड फ्रीली इफ वी कैन थिंक दैट आवर चिल्ड्रंस आर सेफ इन नियर फ्यूचर, दे कैन लिव अ गुड लाइफ, तो फिर हम लोग अच्छे से भी जी सकते हैं। सो एनवायरमेंट वी हैव टू ठीक, एनवायरमेंटल कैपिटल। तो सबसे पहले ध्यान में रखते हैं कि भाई अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रेटिंग एजेंसीज, इंडेक्स प्रोवाइडर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, दे आर द स्टेक होल्डर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई बता सकता है कि जिसमें ये काम कर सकते हैं? यूएन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, बराबर है। उसके बाद कंपनीज, तो अलग अलग कंपनीज रहेगी। पॉलिसी मेकर्स कौन? गवर्नमेंट, सो फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड गवर्नमेंट। रेगुलेटर्स, सेबी, आरबीआई, एमसीए, दे आर द रेगुलेटर्स, बराबर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड एजेंसीज, बराबर, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, रेटिंग एजेंसीज, आपको पता है। इंडेक्स प्रोवाइडर्स अलग अलग होते हैं, पता है ना, एस एंड पी, इंडेक्स प्रोवाइडर्स जो इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, एस एंड पी, फिल्च, कैर, क्रिसिल, क्रिसिल इंडेक्स प्रोवाइड करता है। क्रेडिट रेटिंग नहीं देता, पता, आईसीआर है, इकरा, बराबर है। एडलवाइजिस, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द इंडेक्सिंग, बराबर है। डाउ जोन्स इंडेक्सेस, दे आर प्रोवाइडिंग इंडेक्स सर्विसेज। एस एंड पी इज स्टैंडर्ड एंड पुअर, बराबर है। मैकेंजी है, बराबर है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कोई बता सकता है? यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, आईआईएम्स, आईआईटीज, दे ऑल आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ ईएसजी। आप बोलते हो ना कि भाई आईआईटीज में एक ऐसा मशीन बनाया है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो मींस दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ईएसजी। सो इट इज नॉट लाइक कि भाई वी कैन ओनली क्लैप विद द वन हैंड, ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट क्लैप विद द वन हैंड, वी नीड अ डिफरेंट हैंड्स फॉर द क्लैपिंग। चाहिए सर सब लोगों, दिस इज द ईएसजी स्टेक होल्डर्स। रेटिंग इंडाइसिस, दिस इज फॉर यू गाइस ओनली, कि अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जो ईएसजी की रेटिंग्स देते हैं। हमने ऊपर देखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेटिंग, तो वर्ल्ड में अलग अलग रेटिंग जो देते हैं उसका नाम है ये नाम सुना होगा आपने, ब्लूमबर्ग। फिर सस्टेनेबल एनालिटिक्स, डीजेएसआई, ये बहुत चलता है, डीजेएसआई, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, बराबर है। मूडीज ईएसजी, मूडी का नाम भी सुना होगा। एसएनपी ग्लोबल, अच्छा ये रहा एसएनपी, MSCI. So these are the different rating agencies all over the world. इंडिया में क्या है? क्वेश्चन होगा सर हमें तो एग्जाम में इंडिया का लिखना पड़ेगा। तो इंडिया में जो है वो नॉर्मली सेबी, सेबी ने बोला है कि भाई इट इज इन द कंसल्टेशन पेपर suggested that accreditation of the ESG rating agencies. So it is further proposed that the net worth of the entity which wants to SEBI accredited ESG rating agency, जिसको SEBI registered ESG rating agency बनना है, they should have the net worth of rupees 10 crores. This rating is highly knowledgeable based, and hence the SEBI proposed that the rating agency should have at least one specialist related to the data analytics, finance, IT, law, and sustainability. Currently in India, many agencies like CRISIL, Edelweiss, Acute, they are the different rating agencies. They are providing this sort of ratings. Currently India में इतने तीन लोग हैं, कौन कौन सी? CRISIL, Edelweiss, and Acute. SEBI accredited ESG rating agencies focus on the delta rating rather than absolute ESG rating. वो आप भूल जाओ चलेगा, बट आप इंडिया में कौन सी रेटिंग एजेंसी वो ध्यान देना। अब यार देखो ईएसजी गवर्नेंस के लिए इंडिया में मिनिस्ट्रीज कौन सी है और बॉडी कौन सी है? तो सबसे पहले एमसीए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। अभी आपको तीनों को ध्यान में रखना पड़ा है, ओनली जी नहीं, ई और एस भी, रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड लेबर। सोसाइटी को ध्यान में रखते हो, लेबर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर।
बॉडी आरबीआई सेबी एनजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपने शायद सुना होगा ये जो उनका ईसा फाउंडेशन वाले बाबा नहीं है। हाँ, पता है उन लोगों ने एक केस एंटर किया था। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, उनके सामने किसी ने केस किया था कि भाई ये जो बॉम्बे में या महाराष्ट्र में उनका जो वहां से 24 किलोमीटर का एक एरिया है जहाँ पे आजू बाजू में से वो लोग जो है वो पेड़ पौधे उठा देने वाले थे। प्लांटेशन पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय करने वाले थे जस्ट टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। तो somebody has filed a claim, केस फाइल किया था बोले कि, और वो केस गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। बराबर है कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं, इट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट एंड दिस एनजीटी came into picture in a value after the disasters of the भोपाल गैस डिजास्टर। ये नाम सुना होगा, भोपाल गैस डिजास्टर। बराबर है, वो ट्रेजेडी थी एक, और पूरा एनवायरनमेंट को अफेक्ट हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर भी गए थे। एंड अभी दिल्ली का प्रॉब्लम चल रहा है। दिल्ली में शायद आपको पता हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का इश्यूज चल रहा है। सो देयर आर सो मेनी केसेस फाइल्ड विद द एनजीटी एंड दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है, याद रखना ये सब चीजें लिखने के टाइम पे। This is the ESG rating component practice structure as it is available in your book। ये बुक में आपके अवेलेबल है। एनवायरमेंटल रेटिंग, गवर्नमेंट रेटिंग एंड सोशल ESG। Now, format of the compliance report on the corporate governance by the listed। Yeah, this is the format है, सेल्फ फॉर्मेट। और वो भी आपकी भी बुक में इतना ज्यादा डीप में नहीं दिया था। सो आई ऑल्सो थॉट दैट कि हम लोग उतना ही रखते हैं। तो याद रखना, रेगुलेशन नंबर 27 ऑफ द सेबी कौन सा LODR, रेगुलेशन 27 सेबी LODR basically requires the listed company, but obviously it is सेबी। सेबी तो कंपनी कैसी होगी, it's a listed company is required to submit quarterly compliance report on the corporate governance। again याद रखना ये कैसा रिपोर्ट है, क्वार्टरली। तो how many reports they have to submit, 4। बराबर है, और फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पे एनेक्चर 1 में, जिसको क्वार्टरली बेसिस है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, माने एक साल खत्म होता है तो एट द एंड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एनेक्चर्स 1 2 3 मैंने रखा नहीं है, आपके मॉड्यूल में भी रखा नहीं है, मेरे पास है। बट इट वाज लाइक मैं आपको एनेक्चर बताऊंगा, आप एनेक्चर में ढूंढोगे कि सर ये तो पूरा टेबल है जो कंपनी भरेगी डेटा, तो उसमें आपका क्या काम है। तो आपके लिए इतना याद रखने का कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट में लिस्टेड कंपनी रेगुलेशन नंबर 27(2) के हिसाब से क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सबमिट करें। दैट इज अ सिंपल केस। क्लियर? टीवी चेक, यू नीड अ ब्रेक। हाँ, 12 बजे तक तो है। और अभी कितने पेज आ गए पता नहीं। 3.3 है फैमिली बिजनेस। नहीं, एक, दो, तीन, चार, 5 पेज बाकी है। टेक अ ब्रेक 2 मिनट्स में, चाय पी लूँ तब तक। 3.3 तक जाना है ना। यहाँ अच्छी बने, यहाँ पे अच्छी होती है। यहाँ तो लश्कर ही बना है।
देसाई, पराग देसाई, ऐसा कुछ नाम है ना। जैसे वो कुछ बोला कि कुत्ते की वजह से, यू नो द इंसिडेंस क्या हुआ था। ब्रेन डैमेज हुआ था उसको, ऐसे करके कुछ पैर स्लिप हो गया था, फिर वहाँ पे कुत्ते आए और कुत्तों ने अटैक किया। अच्छा, माने वो was he on a driving एक्टिवा पर? मेरे को डिटेल्स कुत्ते बहुत पड़ गए। This is called as a प्रारब्ध। क्या प्रारब्ध? Your old karmas. Yes, it is there, it is fact. It is not spiritual, but it is reality. It is everything is stated in the our spiritual books, irrespective of the religion. फिर वो मोहम्मद पैगंबर हो, यीशु ख्रिस्त हो, अपना हिंदू धर्म में गीता हो, कहीं पे भी ये चीज तो अभी इट इज देयर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्म आर देयर, और उसमें थर्ड कर्म होता है प्रारब्ध। दैट प्रारब्ध इज बेस्ड ऑन योर ओल्ड कर्म। तो उसने ओल्ड कर्म में कहीं पे कुछ ऐसा किया होगा, सपाटा होगा, बराबर। तो इस बार इसकी बारी आई। मेरा एक फ्रेंड है सार्थक, એને ગુજરાતી બહુ ચીડ ચડે। એ શું કરે ખબર? સવારે આવી સોસાયટીમાં ચાલતો ચાલતો જતો, એને સૂતું હોય ને એને ઉઠાડે। ના ઉઠાડે કેમ ખબર? એ રાત્રે સુવા નહીં દે, અત્યારે જાગશે તો તાકી જાય તો સુવા દે, તો ઉઠાડે, હંમેશા ઉઠાડે, ઓલવેઝ। પછી ગેલેરીની અંદર છે ને એમ સ્ટોન રાખી મૂકેલા છે, રાત્રે જો કંઈક અવાજ બવાજ કરે ને તો ત્યાંથી એને મારવા। પછી एक बार तो मैं नहीं जोड़े जाता है, बस विथ हिम इन कार। उस टाइम पे अपना ये जो लाल बाग वाला ब्रिज है ना, हम लोग जब विश्वामित्री से ऊपर चलते हैं, लाल बाग वाला ब्रिज, वहाँ पे ब्रिज बन रहा था। कार वहां से जा रही थी, 11:30 का टाइम था रात का, लेट नाइट। तो फिर वो मिट्टी में सब लोग धूल के अंदर बैठे थे, सब ग्रुप बनाई ने। तो वो मेरा जो फ्रेंड था वो डीपर मारे ने, हम लाइट मारे कि कोई है नहीं, हम देखा ही नहीं, तो खबर नहीं एनी ऊँग पकड़ी हसे। એટલે हम डीपर मारे ने तो એને આંખમાં વાગી હશે, તો અમને ખબર તો પડી કે ના પડાયેલું છે આમ એવું। નજીક લઈ ગયો, એ આમથી 4-5, આમથી 4-5, એટલા બધા લેવલ, આટલા બધા ક્યાંથી આવી ગયા? તો કે આ તો મજા છે। તો શું મજા છે? ધીમે રહીને ગાડી સાઈડ પર કર, તો એ પાછળ દોડે ને તો એને બી થોડી ફાસ્ટ કરી, એટલે પેલું વધારે ફાસ્ટ કર્યું, ધીમે રહીને દરવાજો ખોલી કાઢ્યો। દરવાજો ખોલ્યો ને તો 3-4 જણા પડ્યા કૂતરા। દરવાજો સ્પીડમાં હોય એમ દરવાજો ખોલ નાખે એટલે આમ ગુંડા થઈને પડે। મને કે આ લોકોને પડેલા જોઈને પાછળ વાળા ભાગે નહીં, તો લિટરલી ચૂપચાપ ખાન દેવી બે આવું મરાતું હોય કોઈ નહીં યાર, હું ભૂલથી અંદર ઘૂસી ગયું મારે કઈ બંને નહીં આવી વાત। એટલો બધો ખતરનાક, બહુ ચીડ ચડે કુદરત, ખબર નહીં। anyway, चलो आगे बढ़ते हैं। Moving further for the 3.3, the 3.1 basically deals with the corporate governance basic concepts and the fundamental issues। 3.2 it deals with the practices and the codes which are applicable, fine है। And 3.3 deals with the family business। मुझे whenever I ask question to the students that which are the different types of the company, and the students will ask, students will answer private company, public company, statutory company, one person company, holding company, subsidiary company, investment company, government company, ये सब नाम देते हैं। But basically 90% of the companies are the family companies। They are the family companies। So definition according to the IFC, International Finance Corporation एक definition दी है। A family business refers to the company where voting majority is in the hands of controlling family। कंट्रोलिंग फैमिली सर सबसे ज्यादा परसेंटेज वही लोग लेके बैठेंगे, बराबर है। इंक्लूडिंग द फाउंडर्स हु इंटेंड टू पास द बिजनेस ऑन टू देयर डिसेंडेंट, उनके पास ही लेके बैठेंगे फैमिली बिजनेस। एंड नाउ ऑनवर्ड्स द टर्म फैमिली बिजनेस, फैमिली फर्म, फैमिली कंपनी, फैमिली ओन बिजनेस, ये सब इंटरचेंजेबली यूज होता है। बैकग्राउंड, even for the foreign countries 70% of the overall businesses they all constitute the family business। Even in the Spain also 75% of the business are family owned and contribute to 65% of the country's GNP on an average। This is the background।
So far as India, मैं इंडिया का लिखना भूल गया, almost 90% of the companies they are a family business in India. हाँ 90% सबसे ज्यादा इंडिया में, इसमें कोई गलत नहीं है, चलता तो है नहीं, इट इज जनरेटिंग द रेवेन्यू और कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, बराबर है, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे वो देखते हैं, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द फैमिली कंपनीज। सेल्वाटोर, ये सब फॉरेन कंपनीज के एग्जांपल है, पेनोटेट, फियाट, लोरियल। मुझे नहीं पता था ना, पहले मैं लोरियल बोलता था, दिस इज लोरियल, this is right, LVMH group, then after Hyundai Motors, Samsung, LG group, Siemens, Ford, Walmart, they all are considered to be the family based company. Even in India, if we talk about Tata Sons are there, in Adani, even for the Ambanis, for the KM Birla group, they are having their own. But what is the basic fundamental problem so far as this sort of companies are concerned? Is larger the company, greater the conflict of important part is sentimental value. Family sentimental value collides with the entrepreneurial values. And this is why the conflicts in the family companies must be handled properly with the help of consultant or the lawyer. શું બનાવું? He's so eager એ પૂછવા માટે. જો હમણાં 10-15 મિનિટમાં જો ડોટ 12 વાગશે ને, ડોટ 12 વાગશે. શું બનાવું? This is the biggest question of the entire, India, especially the world. India's question from the wife. શું બનાવું? Question તો એવી રીતે પૂછે છે, બહુ બનાવતા હોય ને એવું. They have the entire list. The list is exhaustively almost double inverted comma. મને ફિક્સ ही होता है. And from that list they have decided already કે આજે આપણે આજ બનાવવાનું. અને જો કદાચ હું એ સિવાયનું બોલીશ ને એટલે એવું કહેશે એવું છે, તો પછી મારે એટલે આગળ પછી છોડી દેવાનું ડોટ ડોટ ડોટ, તો પછી મારે એટલે અચ્છા એવું છે આ નહીં તો પેલું બનાવી દે, એટલે ધીમે રહીને બીજા કે ત્રીજા સ્ટેપ પર what she decided એ આવી જાય. Who's is laughing? क्या हुआ भाई साहब? मुझे किसी ने एक वर्ड समझाया था, ये मैंने सिंधी मेरे स्टूडेंट थे, मैंने उनको पूछा यार मान लो कि मैं और मेरी वाइफ कोई फैमिली वाले घर में हम बैठने गए और वहां से हमें थोड़ा जल्दी उठना, तो मैं कौन सी लैंग्वेज में उसको बोलूँ कि હવે જઈએ હવે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો, એનું ખબર ના પડે. तो सी टोल्ड मी सर हेडा बूढ़ो था कि ऐसा कुछ है. तो सी एक्सप्लेन मी કે સર આવું તમારે બોલવાનું કે સાંભળો જો આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ ચાલો હવે જઈએ. हेडा हेडा बूढ़ो था, बूढ़ो था, हाँ ऐसा. सी टोल्ड मी, हाँ वही वही, चलो હવે જઈએ, આપણે ગુજરાતીમાં એવું કે હેડો હવે જઈએ. हाँ ये बात सही है. तो at the same time I have decided we both at that time we were present. તો મેં બોલું કે હવે હું આવું બોલું અથવા તો તું આવું બોલું ને હું સમજી જઈશ કે હવે આપણે જવાનો ટાઈમ થયો. Anyway, coming to the next part, this fundamental family business is concerned, your community is also considered to be the largest community so far as this business is concerned, right? So problems arise when the sentimental value collides with the entrepreneurial value, and there is always a problem of conflict. This conflict may bring a bad consequences to these kind companies, which may end up destroying the entire family business. I can give the two examples. The first example of the Ambani brothers, and another is of the Bajaj brothers. Ambani brothers, when the Dhirubhai has disbursed the entire family into two parts. One is of the Anil and the Mukesh. Anil was considered to be the ADEC group, ADEC, Anil Dhirubhai Ambani group, and the Mukesh assigned with the this industry and etc. And Anil assigned with the communication and all these things. The person who has the guts, who has the idea, and who has the skill, he can run the business properly. So, chala raha hai. Now, in the case of the Anil, you can see.
The two one another example is of the Bajaj brothers. बजाज के भी दो बच्चे थे, बराबर है। बजाज ने एक राजीव और एक संजीव, कुछ ऐसा नाम था, आई वाज नॉट नोइंग करंटली, याद नहीं अभी मुझे। ये दोनों को अलग अलग बिजनेस दे दिया। एक को दिया था फाइनेंशियल कंसेप्ट वाला, मैंने फिन बजाज फाइनेंस एंड एक्सेट्रा सॉर्ट ऑफ थिंग, एनबीएफसी वाला। एक को दिया था वो मोटर्स वाला, ऑटोमोबाइल्स वाला, बजाज ऑटोमोबाइल्स एंड एक्सेट्रा। बोथ आर रनिंग सक्सेसफुली and both are running, handsomely. So you understand the family business concept, and if you assign it properly, if you deliver it properly, then this business can go for a long period of time. But the main problem is a succession planning. If you are not doing on a right time, so there is always a question. It happens not only in the business, it happens in different segments. Let me give you one beautiful example. BAPS करके है संस्था, BAPS, they have the succession planning. They already decided कि भाई इसके बाद क्या. If they have decided, now there is no any problem of issue arises at the time of that time. They have decided कि भाई अगर मान लो कि भाई जो है प्रमोशन में नहीं होंगे तो उसके बाद ये ही आएंगे, तो उसके बाद कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी ही नहीं. बट लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. उनके अगेंस्ट में थे वो शोखड़ा में जो था स्वामीनारायण मंदिर था, शोखड़ा में उनका कोई इश्यू हुआ था, उसमें से दो पार्ट हो गए थे, शोखड़ा का कोई इश्यू हुआ था, वो भी स्वामीनारायण मंदिर है. दिस इज कॉल्ड एज अ लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. एंड देयर इज ऑलवेज बोर्ड प्रोसेस, जो हमने देखा ना, वो बोर्ड प्रोसेस में देयर शुड बी एटलीस्ट अ वन मीटिंग इन अ ईयर फॉर द सक्सेशन प्लानिंग. ऑलवेज इट इज नॉट द क्राइटेरिया, but there should be at least a one board meeting for the succession plan honi chahiye. That is the case. Anyway, moving further, features of the corporate governance in the family business. जितने भी फुल टाइम डायरेक्टर्स होंगे, सीनियर मैनेजमेंट वाले लोग हैं, either from the family or related to the family members, so that the control and the ownership is diluted with the shareholdings being diluted on passing of the generation. वो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट ऑब्वियस इट अराइजेस. जैसे जैसे बिजनेस फैमिली ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. बट व्हेन द फादर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई बड़ा होगा तो भाई इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, बराबर है. इमोशंस आर अटैच्ड एंड देयरफॉर सम डिसीजंस आर टेकन व्हिच मे नॉट बी मैनेजरियली करेक्ट. हो सकता है ऐसा, बराबर है. एंड पर्सनल इमेज ऑफ द चेयरमैन, एमडी, द डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच डिटरमाइंस द रेपुटेशन. The disability of the senior member in the family results the leadership management crisis. These are the major issues so far as this family business is concerned. But the same not happen in the case of the government companies. अब ऐसा कोई इश्यू रहता नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाएगा. Emerging issues in the family business in India. इंडिया में कौन सा है? Separation of the ownership and the management. Family members acquiring a professional courses from the reputed institute. देखना कोई भी बंदा ना अपने नीचे माने उसके बेटे को अच्छी सी इंस्टीट्यूट से पढ़ाएगा, ठीक है. इट मे बी फ्रॉम द हार्वर्ड, इट मे बी फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड, इट मे बी फ्रॉम द आईएम्स में तो नहीं बोल सकते बिकॉज एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशंस एंड एक्सेट्रा. बराबर है. प्रमोटर्स आर एनकरेजिंग द प्रोफेशनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस. दे आर मोर फोकस्ड ऑन द कॉम्प्लायंस टू अवॉइड द लॉस ऑफ रेपुटेशन. Now they are focusing on the reputational loss as well as the regulatory loss. Let us take an example of the ITC. The ITC is earlier Indian Tobacco Company. The day when they entered into the market, they know that they are facing currently the reputation regulatory risk, because at any point of time government can ban the tobacco. At any point of time, हो सकता है. So they know that before it comes, this sort of risk comes to the company or the organization. Let us diversify the business. So they have diversified into different segments, even for the hotel business, even for the stationery business, for the different sectors. Fine. And now ITC जो टोबैको कंपनी थी वो अभी ऑलमोस्ट 10% जितना ही टोबैको कंपनी रहा है, बाकी सब तो उसने पूरा बिजनेस डाइवर्सिफाई कर दिया. Role and the leadership clarity decided at the board level. Owners are accepting and honoring the opinion of the managers, and family, social and emotional issues are being satisfied by forming a trust foundations which are separate from the business entity without conflict of interest. उसमें सबसे important चीज Reliance have their own foundation, which is led by the Nita Ambani. Fine.
एक तीर से दो निशान हो गए. There is a criteria for the CSR, so they are doing the CSR activity also. So that is the case. So I think this is 3.3 is clear so far as the corporate governance issue is concerned, especially in the family business. 3.4, dear students, I am giving it to up to you. CSR. That section 135 we already discussed of the Companies Act 2013. बराबर है. Constitution of the CSR committee हमने already देखा हुआ है. This is just a guideline and the principles they have mentioned, particularly for the responsible business in terms of the socially responsible business. So these are the steps. अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो. Note refer section 135 as per the Companies Act. Fine. So I am leaving it up to you. This is very a short and simple part. There is no any provisions which are associated so far as the CSR is concerned. कर लोगे पक्का? मैं तो आप ही दे दूँ छे भाई. I already issued. एक बार सर से पूछ लेना कि સર ક્યાં અત્યારે મળી ગયો છે ખરું કે નહીં, એવું પૂછી લેજો ફોન કરીને હમણાં. હોય તો તમે લેતા જ જજો. બરાબર. I already issued it. I know the examination is nearby, so I already prepared it and give it. मैं काले જ કહી દીધું કે પ્રિન્ટ કરાવી લેજો સર, આપી દેજો. मैं કાલે જ આપ્યું બપોરે. Now come to the next part, sustainability management. What is the first principle of the corporate governance? BSC. Second, BP. Third, SV. Fourth, TD. And the fifth one is CSR, जो ऊपर हमने देख लिया. And S माने sustainability. So what is the meaning of sustainable management? So managing the public policy and the affairs and management of the affairs of the corporate. Public को भी ध्यान में रखने का है, साथ में सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, household, in a manner which would protect the resources for the future, not and shall continue to sustain as an economic and socially responsible organization. Nowadays we are focusing on the EV vehicles. EV vehicles, that is also one of the socially responsible project. बराबर है. पॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा जब आपके पास प्रॉपर इकोसिस्टम हो. अभी आप देखोगे if someone is asking to me, sir, would you like to buy the EV, मैं बोलूँगा I am willing to buy, but there is no any enough resources. The same happened with the CNG also. When the CNG introduced, there was a very lesser stations of the CNG, and there was a big and huge lines, queuing, big and huge queues are there where there is so far as these CNGs were concerned. So nowadays the situation is totally different. अभी आप देखोगे तो जितने पेट्रोल पंप नहीं होंगे उतना सीएनजी स्टेशन हो गए. मीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. लिथियम के हिसाब से मिलेगी. हाँ, बट ओवरऑल जो प्रॉब्लम है ओजोन लेयर है उसमें है. सो जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन है, देखो अब कंपनीज होगी ना तो कंपनी में डीजल चाहिए ही चाहिए. बराबर है. जिस जगह पे इलेक्ट्रिक यूज होता है वहां पे होगा, अदरवाइज तो डीजल चाहिए ही चाहिए. जिस जगह पे पेट्रोल चाहिए वो चाहिए ही चाहिए. बराबर है. बट व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम द वन फ्यूअल टू द अनदर एनर्जी, तो ऐसा तो पकड़ के चलो कि करीबन 60-70% ऑफ द बेनिफिट यू मे डेफिनेटली अवेल बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस थिंग्स. वो तो होगा क्योंकि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाइना में तो कब से चल रहा है ये चीज. बराबर. सो एंड वी हैव द टारगेट फॉर द जीरो कार्बोनेशन, नेट जीरो का मतलब हमें पूरा एमिशन जो है, कार्बन एमिशन, वो 0% करना है. बट वो हमारा टारगेट 2035 का था, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बढ़ा के 2070 कर दिया है. कि भाई हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज और कैपेसिटी नहीं है कि 2030 या 35 में कर दे. That was the case of COP26. I have mentioned in my this article. वो एक्सटेंड किया गया है और मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो हमारे पास ऐसे इतने अपने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं 2030 में जीरो कार्बन कर दूं. अमेरिका कर देगा 2030 में. बराबर है. हमने बोला 2017 70. बराबर. तब तक तो पता नहीं. Approaches for the sustainable development. There are three approach. It's a triple bottom line approach. पहला profit, planet and people. ये कौन सी कैपिटल? इकोनॉमिक कैपिटल. ये कौन सी कैपिटल? एनवायरमेंटल कैपिटल. और ये ह्यूमन कैपिटल.
This is economic approach, this is ecological or environmental approach, this is social approach. Which environmental approach basically deals with the preservation of the diversity, water, mines, forest, etc. And industry should use the minimum natural resources. सब लोग आ गए, plant, plantation, forest, water, everything, minerals, etc. Social, the industry is for the society and shall not damage the social security, values, and welfare of the people. These are the steps for the sustainable development. अब स्टेप देखोगे तो बोलेगा कि सर ये तो कॉमन स्टेप्स है. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया, set the thrust areas for the solution, set the targets and the goal, evaluate the projects. अभी शायद आपको पता था few years back there was a project related to the solar panel. बराबर, government was providing the subsidies particularly for the solar panel. अभी even government is also providing a taxation benefit under section 80 for these carbon related projects. बराबर है. उसके बाद आया ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. उसके बाद आया स्टार्टअप स्पेशली इन द ईवी, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. उसमें भी गवर्नमेंट टैक्सेशन का बेनिफिट दे रही थी. ठीक है. Select the project, planning, use the tools, technologies, schedule the actions, organizing, staffing, directing, monitoring, corrective actions, and review actions. These are the different steps. Areas where the actions can be taken. तो सर एरिया में तो मेरे हिसाब से सर एरिया में क्या है, ई, एस एंड जी. नेचुरल रिसोर्सेस कम होने चाहिए, यूज, कन्विंस एंड मेक द कम्युनिटी टू रिड्यूस द वेस्ट, use the alternate sources, protect the environment, adopt the recycling, use the biodegradable packaging. बराबर है सर, ऐसा ही यूज करो. फॉर एग्जांपल आई हैव सीन one of my students has taken up the project with me, and with the help of him we have taken up a project of this eatable spoon कि भाई खाना खाने के बाद आप उसको भी खा जाओ, तो so that we can avoid the plastic use. For the we have projected कि भाई शायद अगर उसको हमें स्टार्ट करना है तो we need 5 लाख रुपीस के आसपास का चाहिए था. एंड we also tried, हमने बनवाई भी थी. वो गेहूं की बनती है, बराबर है. उसमें थोड़ा बहुत हमने वेनिला फ्लेवर ऐड करवाया था, तो थोड़ा खाते टाइम पे थोड़ा अच्छा लगे, बराबर. आइसक्रीम जैसी कोई चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन यू आर यूजिंग विद द सूप, अभी वो सूप तो गर्म होता है, सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द सूप इट मे बी पॉसिबल कि वो जो है वो पिघल जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो हमने उसके पास गए थे और बोला था कि हमें ऐसी चीज बनानी है कि शायद ये एटलीस्ट 5-10 मिनट्स तक वो सरवाइव करके रहे, उसके बाद फिर वो पिघल जाएगी और उसमें यूज करके खाया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत. उसने ऐसा बना के दिया था, एंड विद द डिफरेंट साइज, and one piece costing I think 10 rupees for the other people, and if we want to sell 10 rupees, actually it was costing 6.5 rupees, 6.75 rupees for us. That was the case. ठीक है. And we approached to the हम गए थे वाड़ीलाल अहमदाबाद, then after real ice cream, then after उन्होंने बोला कि सर we are very happy, we can use it even on the outlet also, बाहर रखेंगे. ठीक है. और जितनी भी शादी वगैरह चीजें होगी वहां पे तो सबसे अच्छी चीज यही है सर कि हमें डिस्पोजल यूज नहीं करनी पड़ेगी, और ये ईटेबल स्पून है तो खा भी सकते. सो दैट इज द केस. कंट्रोल द deforestation, encourage the forestation as you know, that is particularly for the forest animals. अभी आपने देखा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज को प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, बराबर है. रिड्यूस द डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट इन द एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कार्बन एमिशन नेट जीरो, जैसे हमने बोला कि सर उस हिसाब से जाएंगे. बेनिफिट्स ऑफ द सस्टेनेबल मैनेजमेंट में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. Sustainable reporting framework, global reporting. In global reporting, these are the different standards are there. Integrated reporting, जो पहले स्टैंडर्ड नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी लाइक आईटीसी, लाइक टीसीएस, दे आर यूजिंग द आईआर अप्रोच, इंटीग्रेटेड फॉर्मेटिंग रिपोर्ट अप्रोच, जीआरआई, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, बराबर. सो फार एज अभी आपको क्वेश्चन होगा सर इंडिया में कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज होगा, तो इंडिया में मैं आपको बता दूं BRSR report. BRSR report, as you know, BRSR means Board's Responsibility and Sustainability Reporting. BRSR, in May 21, an initiative towards ensuring the investors access to standardized disclosure on the ESG parameters.
currently top 1,000 listed enterprise by market capitalization, they are supposed to file the BRSR mandatorily from the financial year 22-23 and voluntarily for the financial year 21-22. So far as the reporting framework of the BRSR is concerned, this is the universal standard. India में for accepted by the SEBI. तो SEBI ने जो BRSR बनाया है उसका फॉर्मेट ऐसा है. जो BRSR है ना, these are the key snippets. उसमें there are 3 types of the disclosure: general disclosure, management and the process related disclosure, and principle wise and performance disclosure. और ये जितने भी एरिया है, ये जो रिपोर्ट है BRSR is a report. It is to be annexed to annual report and MCA. तो हमने देखा कि भाई एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट आ जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आएगा, BRSR रिपोर्ट आएगा, बराबर. द पॉइंट ऑफ अ डिस्क्लोजर, तो जो 3 क्राइटेरिया है, इट इज बाइफर्केटेड इनटू क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, एसेंशियल इंडिकेटर्स एंड लीडरशिप इंडिकेटर्स. इट इज नॉट मेंशन इन योर नोटबुक और योर मॉड्यूल, बट BRSR का फॉर्मेट कैसा होगा ये टेबल आप ध्यान में रखना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और रिपोर्टिंग के 2 फॉर्मेट बनाए हैं. BRSR लाइट, दिस इज फॉर द न्यू कंपनीज टू अंडरस्टैंड, and BRSR comprehensive for the experienced. These are the 2 different reporting formats are there. Okay, so I think yes, that's it so far as this chapter of a corporate governance is concerned. So we have seen in this chapter of a corporate governance basically 5 parts. First part is of the concepts and definitions we have seen. Then we discuss about the second part, code and principles in India. The third one is related to the family business. The fourth one is related to the CSR. Fifth one is related to the sustainability. I'm ending up and concluding with the remarks of the 5 important parameters of the corporate governance. The first one is related to the BSC, that is board structure and the committee. The second one is of the board process. The third one is of the TD, SVE, stakeholders value enhancement. Fourth one is of the TD, transparency disclosure, and the last one is of the CSR and sustainability. So far as the CSR and the sustainability is concerned, we have discussed for sustainability in India, the indexes, which is indexing agencies, is the CRISIL, Edelweiss, and Acute. They are in the process and they are SEBI accredited. So those who like to become or to be indexing agencies for the ESG, they need to get the accreditation from the SEBI, and they need to have the what we can say the amount net worth of the 10 crores at least. This is the criteria. So far as these reporting requirement is concerned, especially in India, we have the SEBI has started to come out with the BRSR report, having into the 3 criteria, stating the different qualitative, quantitative, essential indicators and leadership indicators. And they also come out with the 2 major important format. One is of the light format and the comprehensive format. Light format is for the new company and the comprehensive format for the experience. So that is all about our 3rd module, that is corporate governance, social responsibility and the sustainability. Okay, so I'm concluding my session over here.